All right, friends. So, welcome to yet another episode on FinTalk with Hitesh. And in this Decoding SIF series, today we are going to decode the Magnum Hybrid Longshot SIF. And we have none other than Mr. Gaurav Mehta, who is the fund manager at Magnum and SBI Mutual Fund. He's going to talk about this strategy today. So, we have Gopal sir. Gopal sir is a very old hand in the SBI system who has always mentored us, guided us in our entire journey of growing Phenomatic. So we would first want to hear a few words from Gopal sir, and then we can start this discussion. Thank you, Tesji. It's my pleasure to be associated with Phenomatics. I have seen the phenomenal growth of Phenomatics. I have seen Phenomatics started working in 2018, and now they are sitting on the assets of 1600 crores, which is the highest in East, and Yes, sir. SIP book size of 19 crores. Amazing. I have cut the cakes with you when you achieve 25,000 unique PAN. Today you Yeah. are sitting on 61,000 unique PAN. Am I right? Yes, sir. Yes, sir. So this is always my pleasure to be associated with Hitesh ji and Utkarsh for Phenomatics. So I will not take much time. Today we have with us our star fund manager Gaurav Mehta, who is handling our SIF. So Gaurav has got total 17 years of industry experience. Gaurav Mehta joined SBIMF in November 2018 as an analyst and fund manager. Effective October 1st, 2021, Gaurav Mehta assumed the role of CIO Alternatives. So our Alternatives is doing extremely good. Prior to joining SBI Mutual Fund, he worked as a portfolio manager at Ambit Investment Advisors. Previously, he worked with Ambit Capital and Edelweiss Capital also. Gaurav has completed BTech Chemical Engineering from IIT Mumbai, holds a postgraduate diploma in management from IIM Lucknow. Gaurav is also a CFA chartered holder of CFA Institute US. So I don't think there is much required to introduce Gaurav Mehta. He is presently handling our SIF when it was permitted by the SEBI. So I will Mhm. not take much time. I hand over this virtual podium to Hitesh Jain. Over to you, Hitesh ji. Thank you so much, Gopal sir, and welcome to our show, Gaurav sir. I can see My that, pleasure. Thank you so much for having me, Tesh. yeah, I can see, sir, that our careers are aligned. I have 17 years of experience, and you are in the same. We started Phenomatic in 2018, and you joined SBI in 2018. So our fortunes are aligned, I can say that. Okay, so so in this series now, what we are trying to do is that we are trying to understand the different SIF products which are coming. I mean, we are seeing one NFO coming every day, and when we look at it from outside, then we see that okay, every product has either a hybrid long short written in front of it, or I have, I mean, as an investor, because we don't have much experience about the product. We have not seen the fluctuations, volatility, or the returns, and we have not seen cycles with these products, at least in the SIF space. I'm sure they would have, I mean, you guys have seen how these products behave in alternate space, but SIF is completely new, even for distributors like us, even for the end user who is actually subscribing to your schemes. So, the first time, I just wanted to ask you a very basic question to start this conversation, that ये SIF म्यूचुअल फंड से किस मायनों में डिफरेंट है, एंड how safe is SIF? I think very good question, a very pertinent question to begin the discussion. So, when you think of SIS versus mutual funds, I think mutual fund essentially is a long only product, right? अगर आप small cap mutual fund में invest कर रहे हैं तो small caps have to do well and then the small cap mutual fund will do well. You're investing in a large cap equity fund, large caps have to do well and the fund will do well. So in a mutual fund, large part of the returns are determined by how the underlying asset is doing well. उसके Yeah. ऊपर फंड मैनेजर एक अल्फा क्रिएट करते हैं, बट जो बड़ा रिटर्न है वो बीटा से बन रहा है, वो मार्केट डायरेक्शन से बन रहा है, और थोड़ा रिटर्न अल्फा से बन रहा है. Versus which SIS में I think there are two main flexibilities that regulator has allowed. First, you can use 25% of your AUM to go short. And when Okay. I say short, unhedged short, right? Which means अगर मेरे पास कोई स्टॉक नहीं है और मुझे लगता है वो स्टॉक घट सकता है, प्राइसेस नीचे आ सकते हैं, then I can short that stock even without owning it and Okay. benefit from a price decline. This I can do up to 25% of my AUM. So I think this is a big advantage because once you short, then you are not necessarily fully dependent on market direction. At least some portion of your portfolio can be less dependent on how the market is doing or not doing. The second flexibility with SIPs versus mutual funds is कि the way you can use options. तो options को आप यहाँ बहुत flexibly use कर सकते हैं.
म्यूचुअल फंड में कुछ स्ट्रैटेजीज अलाउड है, जैसे कवर्ड कॉल, जहां आप स्टॉक ओन करते हैं उसके अगेंस्ट आप कॉल्स लिख सकते हैं। लेकिन वो कवर्ड कॉल सिर्फ 15% ऑफ इक्विटी पोर्टफोलियो पे कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में, सिर्फ निफ्टी स्टॉक्स में कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं। एसआईएफ में वैसे रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, आप पूरे पोर्टफोलियो पे भी कॉल्स लिख सकते हैं, आप निफ्टी के बाहर वाले स्टॉक्स में भी जा सकते हैं। सो ओवरऑल जो यूज़ ऑफ ऑप्शन है वो बहुत फ्लेक्सिबल है। तो एक तरफ आप 25% पोर्टफोलियो को नेकेड शॉर्ट के लिए, अनहेज शॉर्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं, और ऑप्शंस को भी आप बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबली यूज़ कर सकते हैं। और इस कॉम्बिनेशन से आप एक ऐसा रिस्क रिवॉर्ड प्रपोजिशन बना सकते हैं जिसमें मार्केट पे डिपेंडेंस थोड़ी कम हो जाए। तो एक म्यूचुअल फंड जो मार्केट डायरेक्शन पे बहुत ज़्यादा निर्भर है रिटर्न बनाने के लिए, यहाँ पे आपकी ability to generate returns which are less, I won't say completely independent, but which are less dependent on the overall market direction increases. And that in a way sort of, creates room for some uncorrelated returns in the investor portfolio. So I think that's a big advantage. Um, you know, I think this discussion will not be complete unless I bring something like AIFs into picture. तो ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स एक कैटेगरी है जहाँ पे भी इंडिया में डेरिवेटिव्स का यूज़ बहुत फ्लेक्सिबली अलाउड है। लेकिन एआईएफ में जो मेन प्रॉब्लम है, दो हैं। एक तो वहाँ टैक्सेशन बहुत ज़्यादा प्यूनिटिव है, 39% टैक्स रेट है ऑन डेरिवेटिव्स हैवी स्ट्रैटेजीज, और दूसरा 1 करोड़ का मिनिमम टिकट साइज है। तो उससे अगर आप कंपेयर करें एसआईएफ को, एक तो आप अपनी जर्नी 10 लाख पे शुरू कर सकते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा डेमोक्रेटिक प्रोडक्ट है ये। और दूसरा, ये म्यूचुअल फंड टैक्सेशन है, जिसका कि मतलब है कि अंदर पोर्टफोलियो के जो स्ट्रैटेजीज हो रही हैं उससे इन्वेस्टर को उतना टैक्स इम्प्लीकेशन नहीं है। इन्वेस्टर जब फंड रिडीम करते हैं तो डिपेंडिंग ऑन ये इक्विटी फंड है या डेट फंड है या हाइब्रिड फंड है, वो रिडेम्पशन पे टैक्स देते हैं जस्ट लाइक एनी अदर म्यूचुअल फंड। सो इन अ वे दिस इज अ गुड इन बिटवीन बिटवीन म्यूचुअल फंड्स। फ्यूचर्स ऑप्शंस में ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, बट टैक्सेशन म्यूचुअल फंड वाली है। सो इट्स अ वेरी गुड इन बिटवीन बिटवीन म्यूचुअल फंड्स एंड एआईएस इन दैट सेंस। तो अगेन गौरव सर, थोड़ा सा और समझना चाहूंगा कि आपने जैसे कहा कि म्यूचुअल फंड इज अ लॉन्ग ओनली प्रोडक्ट, मतलब मार्केट बढ़ेगा तो मुझे फायदा होगा, मार्केट गिरेगा तो मेरा नुकसान होगा। लॉन्ग टर्म में हम हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं कि क्योंकि हमारी इकोनॉमी अच्छा कर रही है तो मार्केट अच्छा करेगी, तो इसलिए हमें म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न बना के दे देता है। हाउएवर इन SIF व्हाट यू आर सेइंग इज कि while you can definitely create 100% long portfolio if the mandate is such and the market is environment is such, yet आपके पास में choice है कि for every stock that you own or for whatever component is there in your portfolio, you can completely buy a covered call, right? तो आप अपने 100% पोर्टफोलियो के अगेंस्ट में आप कवर्ड कॉल लगा सकते हो, एंड हेंस यू कैन लिमिट योर अपसाइड एंड डाउनसाइड, राइट? सो ये एक स्ट्रेटजी हो सकती है। एंड यू सेड कि while I can also do कि मैं 75% ऑफ द पोर्टफोलियो को लॉन्ग रखा, एंड लेट से उसको मैंने पूरा हेज कर दिया थ्रू कवर्ड कॉल्स, एंड 25% ऑफ द पोर्टफोलियो को मैं नेगेटिव शॉर्ट भी कर सकता हूँ, which means that of the entire portfolio, basically this portfolio will do better if the markets were to fall. Am I correct in my understanding? I think broadly you're right, but one difference is that जब आप जैसे 75% पोर्टफोलियो में जो आपने एग्जांपल लिया, उसके सामने आपने सारे स्टॉक्स पे कॉल्स लिख दिए आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शंस, तो उससे आपको एक ऑप्शन प्रीमियम की इनकम मिलने लग गई। उसके बदले में आपने थोड़ी अपसाइड फॉरगो कर दी, बिकॉज जहाँ पे आपने कॉल लिखा है उसके बियॉन्ड आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। Correct. लेकिन ये परफेक्ट हेज नहीं है, बिकॉज जब बाजार घटता है तो आपको सिर्फ जितना कॉल प्रीमियम मिला है उतना ऑफसेट मिलता है, बाकी जितना बाजार घटेगा उतना आपको हिट आएगा। सो फॉर एग्जांपल, अगर आपने कॉल बेच के 2% प्रीमियम कमा लिया, लेकिन स्टॉक अगर 10% घट गया, तो आपको वो 2% का ऑफसेट मिला, लेकिन 10% डिक्लाइन के सामने आपको भी 8% का एमटीएम लॉस दिखा। सो इन दैट सेंस खाली कॉल लिखने से आपका पोर्टफोलियो हेज हो जा रहा है या डाउनसाइड लिमिट हो जा रही है इज नॉट ट्रू। टू द एक्सटेंट ऑफ प्रीमियम आपका डाउनसाइड ऑफसेट हो रहा है, बट इट्स नॉट अ कंप्लीट 1:1 hedge. And which is why covered call is a strategy which works well in a, let's say, in the context of a relatively sideways market, because stock कुछ खास कर नहीं रहा है, आप कुछ पैसे नहीं बना रहे थे उस स्टॉक से, तो कॉल्स बेच के आप कुछ प्रीमियम कमा सकते हैं। बट दिस इज नॉट अ परफेक्ट hedge is the only point that I wanted to make. तो बेसिकली सर, जैसे मैंने कि बाकी फंड मैनेजर से सुना अपने इन सीरीज के अंदर में कि बहुत से लोग कवर्ड कॉल के साथ साथ कई बार कॉलर भी यूज करते हैं, जहाँ पे वो नीचे पुट भी बाई कर लेते हैं।
तो बेसिकली जो नीचे का डाउन साइड हमने प्रोटेक्ट नहीं किया, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए अगर हम उसमें पुट ऑप्शन ऐड कर ले तो हमने बेसिकली कॉलर स्ट्रेटजी लगा दी, और फिर हमने कहा कि हाँ हमने पोर्टफोलियो को एक रेंज के अंदर में बांध दिया, राइट. सो दैट इज ऑल्सो समथिंग दैट एन SIF कैन डू विच ए म्यूचुअल फंड कैन नॉट डू, राइट. एंड Exactly. And is this is yeah. something that we also very actively use. Yes, and on top of that, you also have the understanding कि भाई लेट्स से अगर मार्केट एकदम टॉप पर है और मार्केट के गिरने के आसार ज्यादा हैं, तो यू कैन क्रिएट अ 25% नेट नेगेटिव पोर्टफोलियो ऑल्सो. माई अंडरस्टैंडिंग Right. इज. Yes. So इसमें again मैं आपको एक and I'll just spend a couple of minutes here because the collar is something that we also very extensively use. In fact, अक्टूबर 2025 में जब ये फंड हमने लॉन्च किया था, वी वर अमंग द फर्स्ट वंस टू यूज और टॉक अबाउट यूजिंग दिस स्ट्रैटेजी. अभी कॉलर में भी द वन थिंग टू अंडरस्टैंड इज दैट इट्स नॉट अ परफेक्ट हेज. तो एक कॉलर स्ट्रैटेजी में आप कर क्या रहे हैं, आपके पास स्टॉक खरीदा हुआ है, आप स्टॉक के सामने ऊपर का कॉल ऑप्शन बेच रहे हैं और नीचे का पुट ऑप्शन खरीद रहे हैं. इसमें आपका इंटेंट क्या है कि आप पोर्टफोलियो को बड़े डाउनसाइड से बचाना चाहते हैं, उसके लिए आपको पुट खरीदना है. लेकिन पुट खरीदने में प्रीमियम का खर्चा होता है. आप हर महीने प्रीमियम देते रहेंगे तो आप 12 महीने के बाद शायद आपको पता चलेगा कि जितना खर्चा आपने प्रीमियम खरीदने में, प्रोटेक्शन खरीदने में कर दिया, उतना स्टॉक ने रिटर्न नहीं दिया है. तो इसलिए वो करेक्ट. प्रीमियम पुट ऑप्शन का प्रीमियम फंड करने के लिए आप ऊपर में कॉल भी बेच देते हैं. और इससे होता क्या है कि आपकी डाउनसाइड भी प्रोटेक्ट हो जाती है बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट, और अपसाइड भी कैप हो जाती है बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट. और हम लोग इनफैक्ट ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से करते हैं कि हम हर महीने ऑप्शंस प्रीमियम कमाने की भी कोशिश करते हैं. तो अगर साइडवेज मार्केट, तो हम कॉल और पुट को ऐसे स्ट्रक्चर करते हैं कि कॉल थोड़ा पास का बेचते हैं, उसमें ज़्यादा प्रीमियम आता है. पुट थोड़ा दूर का लेते हैं, उसमें कम प्रीमियम का खर्चा होता है. सो नेट नेट बेसिस पे एक नेट प्रीमियम कलेक्शन होती है. सो दैट अगर बाजार साइडवेज है तो थोड़ा प्रीमियम इनकम कमाते रहते हैं. बाजार ज़्यादा ऊपर गया तो हम थोड़ा अपसाइड बनाएंगे प्राइस में. बहुत ज़्यादा पैसे नहीं बनाएंगे ऊपर में, बिकॉज हमने ऊपर में कॉल बेची हुई है. लेकिन बाय द सेम लॉजिक जब बाजार जोर से घटेगा, हम थोड़ा ही घटेंगे बिकॉज नीचे में हमने पुट खरीदी हुई है. अब हितेश जी, जो राइट. आप बोल रहे थे उसमें बस मैं एक ही चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ कि कॉलर स्ट्रैटेजी में जो ये कॉलर की बाउंड्रीज हैं, जहाँ आपने कॉल बेचा है ऊपर में और जहाँ पुट बेचा है नीचे में, उन बाउंड्रीज के अंदर आप डायरेक्शनली लिंक्ड है बाजार से. तो यस, जब करेक्ट. बाजार चलेगा ऊपर, जैसा कि आप ये ऑरेंज लाइन में देख सकते हैं, जब बाजार उस रेंज के अंदर चलेगा आप थोड़ा पैसा बनाएंगे, उस रेंज के अंदर घटेगा आप थोड़ा पैसा लूज करेंगे. बट दोनों साइड एक्सट्रीम्स में आप ना ज़्यादा पैसा कमा रहे होंगे ना ज़्यादा पैसा लूज कर रहे होंगे. तो इस स्ट्रैटेजी में अगर आप लेट्स से 75% पोर्टफोलियो पे ये स्ट्रैटेजी रन कर रहे हैं, तो थोड़ा आपको पॉजिटिव लिंकेज होगी मार्केट से. बाकी 25% में, जो आपके एग्जांपल में अगर आपने शॉर्ट कर दिया, तो वो उस पॉजिटिव लिंकेज को काफ़ी हद तक कम कर देगा. शायद फिर भी एक नेट नेगेटिव आउटकम ना बने, बट बहुत हद तक उस सिनारियो में आपकी मार्केट पे डिपेंडेंस कम हो चुकी है. So Gaurav, the perfect एकदम, I mean, I'm coming to this number only, so this slide only. It's a, अगर सर आप वो स्लाइड वापस से पुट ऑन कर दो, Sure. आई मीन आई जस्ट वांटेड टू जस्ट अंडरस्टैंड मोर क्लियरली ऑन दिस, कि आपने सर यहाँ पे जो कर रखा है ना, कि आपने ऊपर का कॉल 4% ऊपर, मतलब मान लो जो स्टॉक का जो दाम चल रहा है उसमें आपने 4% ऊपर का कॉल बेच रखा है, और लेट से 5% नीचे का पुट बाई कर रखा है, विच इज वेयर आई कैन सी -5 पे वो प्लेटू कर रहा है और +4 पे वो प्लेटू कर रहा है, विच बेसिकली हियर मीन्स कि अगर स्टॉक 2% या 3% ऊपर गया तो यू आर कैप्चरिंग दैट अपसाइड, राइट. अगर वो स्टॉक 10% ऊपर चला गया तब आप उस अपसाइड को कैप्चर नहीं करोगे, लिमिट योरसेल्फ टू 4%. सिमिलरली अगर स्टॉक अगर मान लो Right. 3% फॉल किया तो आप वहां तक का फॉल आप देख रहे हो, बट अगर वो 10% फॉल किया तो आपका फॉल जो है -5 तक रुका हुआ है, एंड शायद आपने नेट प्रीमियम कुछ कमाया ही होगा, तो दैट इज अगेन अ बफर दैट यू क्रिएट. एम आई राइट ऑन दैट? Right. Right. So you're absolutely right. Just one again, simple, I mean, जो एग्जांपल स्क्रीन पे है उसमें हमने अज्यूम किया है कि अगर हमें 1% प्रीमियम कमाना होता, ये एक इलस्ट्रेटिव एग्जांपल है, ज़रूरी नहीं कि हम सिर्फ यही कर रहे हैं. बट अगर 1% प्रीमियम आपको कमाना है इस ट्रांजैक्शन में, तो अगर आप 3% ऊपर का कॉल बेच रहे हैं और 6% नीचे का पुट खरीद रहे हैं, और ये भी हर ऑप्शन का अलग इम्प्लाइड, हर स्टॉक की अलग वोलेटिलिटी होती है, अलग ऑप्शन प्रीमियम की प्राइसिंग होती है. बट ब्रॉडली मैं ये एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर आपने 3% ऊपर की कॉल बेची और 6% नीचे की पुट खरीदी, तो आपको 1% नेट प्रीमियम बनेगा. राइट. तो उस केस में क्या होगा, जब स्टॉक कुछ नहीं कर रहा है तो आप 1% फिर भी कमा रहे हैं. राइट. ऊपर में क्योंकि आपने 3% ऊपर कॉल बेच दी थी, आप प्राइस में सिर्फ 3 रुपए कमा रहे हैं.
लेकिन 1% प्रीमियम भी आपको मिला था, तो इसीलिए यहाँ पे आपको मैक्सिमम पे ऑफ 4 रुपए की दिख रही है। एंड ओके। सिमिलरली ऑन द वे डाउन आपने 6 रुपए नीचे पुट खरीदी है, तो 6 रुपए आप प्राइस में लूज कर पा रहे हैं, कर सकते हैं, लेकिन आपको 1 रुपए का प्रीमियम का ऑफसेट भी मिल रहा है, तो आपका मैक्सिमम लॉस 5 हो गया। तो इस केस में आपका मैक्सिमम प्रॉफिट 4 है, मैक्सिमम लॉस 5 है। तो ये जो पे ऑफ है ये स्क्रीन पे है। बट इसमें अच्छी बात यह है कि जब बाजार साइडवेज जा रहा है तब भी आपको वो 1% प्रीमियम इनकम मिल रही है जो आपको हेल्प कर रही है। राइट राइट, परफेक्ट सर। आई थिंक अभी तक मैंने जितने इंटरव्यूज किए हैं किसी ने भी इतने क्लैरिटी के साथ नहीं समझाया है जितने क्लैरिटी के साथ में आपने अभी ये कॉल बेचने से और पुट बाई करने से और विद इन दैट बैंड मूवमेंट में क्या फर्क पड़ते हैं, यू हैव एक्सप्लेन्ड इट वेरी क्लियरली एंड आई एम श्योर ऑडियंस वुड लव टू अंडरस्टैंड दिस। राइट सर, तो अभी ना सर, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट डिस्कशन ओवर हियर दैट जैसे हम आज जब म्यूचुअल फंड से पैसे लगाते हैं and we say that there are so many categories and subcategories that you have something like an equity, you have a hybrid, you have a debt, right? And then equity has its own risk and return parameters versus a debt has its own, and and let's say hybrid has its own. तो मैंने जो सर स्टडी किया कि एसआईएफ के अंदर में भी ऐसे ही चीजें हैं। ठीक है, सो एसआईएफ में भी आपके इक्विटी कैटेगरी है, हाइब्रिड कैटेगरी है, डेट कैटेगरी है। अभी तक हमने सर मेजॉरिटी जो फंड ऑफरिंग्स देखी हैं एएमसीज की तरफ से, वो या तो इक्विटी साइड पे है या फिर हाइब्रिड साइड पर है। हाउएवर सर, द प्लेस वेयर द कंफ्यूजन स्टार्ट्स इज दैट म्यूचुअल फंड में आपने एकदम क्लियरली डिफाइन कर दिया कि बॉस ये एग्रेसिव हाइब्रिड है, माने 70% नेट इक्विटी रखेगा वो। राइट, अगर वही लेट से वो कंजर्वेटिव हाइब्रिड है तो वो 25-30% से ज्यादा का नेट इक्विटी नहीं रखेगा। However, when I come to this world of hybrid long short SIFs, there everybody has their own definition. I mean, SEBI has given a very open canvas. Whoever wants to paint whatever design, they can do that. So what I understood was कि आज आईसिफ कर रहा है कोई हाइब्रिड स्ट्रेटेजी तो वो कुछ अलग कर रहा है, प्लैटिनम कुछ और कर रहा है, अरुदा कुछ और कर रहा है, टाइटेनियम कुछ और कर रहा है, आप शायद कुछ और कर रहे हो। सो आई वुड रियली वांट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू सर दैट क्योंकि आप लोगों ने अभी तक हाइब्रिड लॉन्ग शॉट एसआईएफ लाया है, तो इस प्रोडक्ट को थोड़ा डीकंस्ट्रक्ट करते हैं और समझते हैं कि हाउ आर यू रनिंग दिस प्रोडक्ट। Sure. So I think अपनी you've just तो हाइब्रिड लॉन्ग शॉट सुनने में लगता है कि एक होमोजेनियस प्रोडक्ट कैटेगरी है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। रेगुलेटर ने कुछ चीज़ें सेट की है, कुछ बाउंड्री कंडीशन सेट की हैं। फॉर एग्जांपल उन्होंने बोला है कि इस कैटेगरी में आपके जो मेन एसेट क्लासेस होंगे वो इक्विटी और डेट होंगे। तो यहाँ फॉर एग्जांपल आप कमोडिटीज नहीं कर सकते, उसके लिए एक और कैटेगरी है एक्टिव एसेट एलोकेटेड लॉन्ग शॉट। बट हाइब्रिड में इक्विटी और डेट आपके दो मेन एसेट क्लासेस हैं। और उसके बियॉन्ड जो एक कंडीशन रेगुलेटर ने कही है वो कही है कि दोनों एसेट्स मिनिमम 25% ऑफ द फंड होने चाहिए। तो एट एनी पॉइंट इन टाइम इक्विटी मिनिमम 25 होना चाहिए, और एट एनी पॉइंट इन टाइम डेट भी मिनिमम 25 होना चाहिए। उसके बियॉन्ड यू आर फ्री टू डू वट एवर यू वॉन्ट टू, and which is why different people are choosing different paths. Some people are heavy on debt, some people are heavy on equity, some people are in between. From our point of view, the path that we've chosen is to be heavy on equity. So 65 से 75% पोर्टफोलियो इक्विटी में है, जो कि हायर एंड ऑफ द रेंज है। और डेट में पोर्टफोलियो 25 से 35 है, जो कि लोअर एंड ऑफ द रेंज है। और अप टू 10% फ्रीडम हमने अपने आप को दिया रीट्स एंड इन्वेस्ट में इन्वेस्ट करने का। अगर आप इस पोर्टफोलियो को टोटलिटी में देखें तो आप सोचिए कि करीब 1/3 ऑफ दिस पोर्टफोलियो इज इन फिक्स इनकम टाइप इंस्ट्रूमेंट्स विच इज डेट एंड रीट्स इन्वेस्ट, राइट। और डेट में भी हमारी अप्रोच बहुत कंजर्वेटिव है। हम ट्रिपल ए या गवर्नमेंट बॉन्ड्स, यही दो कैटेगरीज में डील कर रहे हैं। हम ट्रिपल ए के नीचे नहीं आ रहे हैं, तो हम क्रेडिट रिस्क ज़्यादा नहीं ले रहे हैं। और हम ड्यूरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से 3 साल से ज़्यादा की मेच्योरिटी का पेपर नहीं लेते हैं। तो जो हमारी ड्यूरेशन पोर्टफोलियो की होती है वो कुछ 1.7 ईयर्स के आसपास होती है। तो जिसका कि सिंपल मायने में अर्थ यह है कि द लिंकेज टू इंटरेस्ट रेट्स और द सेंसिटिविटी टू इंटरेस्ट रेट मूवमेंट्स इज ऑल्सो लो। तो क्रेडिट रिस्क भी कम है और इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी भी कम है। तो काफ़ी पैसिवली हम और काफ़ी कंजर्वेटिवली डेट एलोकेशन कर रहे हैं। उसमें अगर आप रीच इन्वेस्ट ऐड कर दें तो ये पूरा पोर्टफोलियो एक स्टेबल फिक्स इनकम वाला पोर्टफोलियो बन जाता है। और जो बचा हुआ 2/3 पोर्टफोलियो है वो इक्विटी में है। 2/3 इक्विटी में सुन के काफ़ी रिस्की लगता है, बट मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्यों हम कॉलर और उस तरीके की ऑप्शन स्ट्रैटेजी यूज़ करके अपना रिस्क दोनों साइड मेंटेन करके चलते हैं, सो दैट in spite of it being 65 to 75% equities, the overall risk profile is very conservative.
तो इक्विटी में दो मेन स्ट्रैटेजीज हैं। पहला है स्पेशल सिचुएशंस टाइप ऑफ ट्रेड्स। यहाँ पे इन्फोसिस की टेंडर बायबैक ऑफर आई थी, जहाँ 24% प्रीमियम पे इन्फोसिस का टेंडर बायबैक हुआ था। आप यदि इन्फोसिस, हमने जो ट्रेड किया था, हमने इन्फोसिस कैश में लिया, फ्यूचर में शॉर्ट कर दिया, तो कोई प्राइस रिस्क नहीं थी। हमने पूरी क्वांटिटी बायबैक में टेंडर की। उस समय बायबैक के टैक्सेशन ऐसे थे कि बहुत सारे HNIs और रिटेल और प्रमोटर्स बायबैक में पार्टिसिपेट नहीं करने वाले थे। बिकॉज आप बायबैक में पार्टिसिपेट करते तो आपको 39% टैक्स देना पड़ता, और जो आपको फ़ायदा मिल रहा था बायबैक में वो सिर्फ 24% का था। तो हमें लगा बहुत सारे लोग टेंडर नहीं करेंगे, तो हमारे काफ़ी सारे शेयर्स प्रीमियम पे एक्सेप्ट हो जाएंगे, जैसा कि हुआ भी। तो ये एक बहुत ही लो रिस्क ट्रेड था। आपने कैश में खरीदा, फ्यूचर में बेचा, सारे शेयर्स बाय टेंडर कर दिए, 8% शेयर आपके 24% प्रीमियम पे एक्सेप्ट हो गए। आपने एक क्विक 2% रिटर्न बनाया 2 महीने के से भी कम अंतराल में, विदाउट टेकिंग एनी रिस्क। एक रीसेंट ट्रेड जो खत्म हुआ है, JB केमिकल्स और टोरेंट फार्मा का मर्जर। आपने JB केमिकल्स को 8.5% डिस्काउंट में खरीद लिया, टोरेंट फार्मा को फ्यूचर में शॉर्ट कर दिया 8.5% प्रीमियम पे, और 6 महीने में ये 8.5% का स्प्रेड कन्वर्ज होकर जीरो पे आ गया, जैसे कि मर्जर अभी मर्जर खत्म हो चुका है। तो अगेन आपने कुछ 12-15% IRR की अपॉर्चुनिटी मिली, जो कि बहुत ही लो रिस्क थी। कुछ बहुत ही हाई क्वालिटी IPOs भी आप यहाँ ले सकते हैं, बट अगेन पोजिशनली नहीं, आप लेके जैसे ही आपका लिक्विडिटी विंडो खुलता है आप बेच सकते हैं। तो ये कुछ स्ट्रैटेजीज हैं जहाँ पे अगेन आप ओवरऑल मार्केट पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस नहीं लाते हुए अपने रिटर्न्स को थोड़ा एनहांस कर रहे हैं। एंड मोस्ट ऑफ दीज ट्रेड्स, चाहे इन्फोसिस हो चाहे JB केमिकल्स के सामने टोरेंट फार्मा शॉर्ट हो, आपने दोनों तरफ से मार्केट डायरेक्शन को एलिमिनेट कर दिया है बाय बाइंग समथिंग एंड शॉर्टिंग समथिंग। तो ये जो पूरी बकेट है अभी तक की, ये सारी बकेट वो है जहाँ पे मार्केट पे डिपेंडेंस काफ़ी कम है। और जो लास्ट पीस है, कवर्ड इक्विटी एक्सपोजर, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे हम स्टॉक्स खरीदते हैं जो हमें पसंद है, जहाँ पे हम सोचते हैं कि एक पॉजिटिव रिटर्न आएगी। बट उसको हेज करने के लिए, जैसा कि मैंने आपको पहले भी समझाया था, कॉलर्स टाइप की कोई स्ट्रैटेजी करते हैं। ये जो एग्जांपल है 3% ऊपर 6% नीचे, ये सारा एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है। बट प्रैक्टिकली शायद 2%, 4%, 3%, 5%, कुछ भी आप बैंड्स बना सकते हैं अराउंड द बेसिक स्ट्रक्चर। बट द आइडिया इज कि नो पार्ट ऑफ दिस पोर्टफोलियो शुड बी कंप्लीटली ओपन, कि कल को बाजार 10% नीचे घट जाए तो आपका पूरा पोर्टफोलियो पे लॉस आ जाए। तो आप हर समय ऐसे कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं इस ऑप्शन स्ट्रक्चर को कि आपका डाउन साइड प्रोटेक्टेड रहे, प्रोटेक्टेड एज इन बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट, बड़े लॉसेस आपके पोर्टफोलियो में ना दिखें। बट क्योंकि 65-70% इक्विटी है, डे टू डे बेसिस पे ये इक्विटी मार्केट के साथ थोड़ा कोरिलेशन दिखाएगा, लेकिन जो सेंसिटिविटी टू इक्विटी मार्केट्स है वो काफ़ी कम होगी। तो जब इक्विटी मार्केट फॉर एग्जांपल मार्च के महीने में निफ्टी शायद 11% से ज़्यादा घटा था, हमारा पोर्टफोलियो उस महीने में 2% से थोड़ा ज़्यादा घटा था। राइट, तो 11% निफ्टी के सामने हम लिटिल ओवर 2% गिरे थे। जनवरी 26 से मार्च 26 निफ्टी कुछ 4,000 पॉइंट घटा था। तो वो कुछ 15% की डिक्लाइन थी। उस 15% की डिक्लाइन में हम टॉप से बॉटम 2.7% घटे थे। राइट, अक्टूबर में जब से हमने शुरू किया था तब से मार्च एंड तक आई थिंक निफ्टी की परफॉर्मेंस कुछ 13% डाउन थी। उस दौरान हमारा पोर्टफोलियो ब्रॉडली फ्लैट था। राइट, तो इक्विटी एक्सपोजर है काफ़ी, लेकिन क्योंकि हम रिस्क मिटिगेशन मेजर्स लेके आ रहे हैं, एक तो हमारे पास फिक्स इनकम और रीट्स है 1/3 जो एक स्टेबल इनकम दे रहा है। विद इन इक्विटी हमारे पास स्पेशल सिचुएशंस है, प्लस हम ऑप्शंस प्रीमियम कमा रहे हैं, ये भी स्टेबल इनकम दे रहे हैं। और जो बचा हुआ इक्विटी का पीस है वो है जहाँ पे इस कॉलर के अंदर एक डायरेक्शनल रेंज है। तो उससे आप मार्केट डिपेंडेंस है आपकी, लेकिन क्योंकि बाकी सारे कंपोनेंट्स मार्केट से कम कोरिलेटेड हैं, तो आप डाउन साइड मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा कर पा रहे हैं। और ये सब करके हम अचीव क्या करना चाह रहे हैं? तो जैसा कि मैंने कहा, जब निफ्टी 15% घटा, हम 2.7% घटे। ऑन द अपसाइड निफ्टी लॉन्ग टर्म में कुछ 12% रिटर्न देता है। हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम आर्बिट्राज से 250 से 300 परसेंटेज पॉइंट ज़्यादा रिटर्न दे पाएँ ओवर अ लॉन्गिश पीरियड ऑफ टाइम। तो दैट इज़ द ऑब्जेक्टिव। एंड ऑल ऑफ दिस ऑब्वियसली इज विद इक्विटी टैक्सेशन, बिकॉज हम 65% इक्विटी रख रहे हैं। तो ब्रॉडली ये स्ट्रैटेजी है, बट आई कैन शेयर मोर डिटेल्स इफ इंटरेस्टेड। राइट, सो गौरव सर, एक तो आपने बहुत क्लियरली समझा दिया कि देखो बॉस, मार्च के महीने में जब पूरी दुनिया 10-11% गिर रही थी, मिड एंड स्मॉल कैप्स आर फॉलिंग इवन फर्दर,
Your strategy fell by just 2%. So that's like a relief. But the question is ki when the market rises, because again in the month of April, when the market opened up and I mean, the markets rose by I think about 10 odd percent again in the month of April, then how would the product perform? नो यार एब्सोल्युटली करेक्ट दैट कॉलर का मतलब ही यही है कि आपने डाउन साइड में भी ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया और ऊपर में भी पार्टिसिपेशन कम कर दी। तो पहले मैं नंबर्स बताता हूँ और उसके बाद मैं बताता हूँ किस सिनारियो में ये प्रोडक्ट कैसा करेगा। Yeah. अप्रैल के महीने में हम, तो जैसा कि मैंने कहा, मार्च में बाजार 11.3% घटा था, हम शायद 2.1 समथिंग घटे थे मार्च में। जब बाजार 11.3 घटा था, हम 2.1 समथिंग घटे थे। अप्रैल में आई थिंक निफ्टी 7.5% ऊपर गया था और उस महीने में हम शायद 2.3% ऊपर गए थे। तो जो Okay. जितनी भी हमारी मार्च की फॉल थी वो हमने अप्रैल में कवर कर ली थी, जबकि निफ्टी उतना कवर कर नहीं पाया था। उसके बाद से जो पिछले 3 महीने में निफ्टी ब्रॉडली फ्लैट है। शायद आधा 1% इधर उधर होगा। उस दौरान हम करीब करीब आई थिंक 0.25% के आसपास रिटर्न आया होगा इन द लास्ट 3 मंथ, जब बाजार कुछ नहीं कर रहा है। तो ब्रॉडली इसका अगर आप नेचर देखें प्रोडक्ट का, तो ये है कि जो मैंने आपको बताया कंपोनेंट्स ऑफ रिटर्न्स क्या हैं। आप सोचिए 1/3 कंपोनेंट है जहां फिक्स इनकम और रीच इन्वेस्ट से स्टेबल इनकम आ रही है, बाकी 2/3 इक्विटी है। इक्विटी में ऑप्शंस प्रीमियम रेगुलर इनकम दे रहा है और स्पेशल सिचुएशन जब हैं तो आपको रेगुलर इनकम दे रही है या मार्केट से अनकोरिलेटेड रिटर्न्स दे रही है। और बाकी जो है इक्विटी पीस, उसमें इस कॉलर के अंदर मार्केट डिपेंडेंस है। तो जब बाजार साइडवेज रहता है, पहले दोनों इंजन्स फायर कर रहे होते हैं। ऑप्शन से आप प्रीमियम कमा रहे हैं, फिक्स इनकम, रीच इन्वेस्ट, स्पेशल सिचुएशन, ये सब आपके फेवर में चल रहा है। मार्केट डायरेक्शन से कुछ नहीं हो रहा है। तो फ्लैट मार्केट में आप थोड़ा पैसा कमाते हैं, जो कि मैंने कहा पिछले 3 महीने में फ्लैट मार्केट है। हम आई थिंक उस दौरान कुछ 90 पैसे, 90 बिप्स अ मंथ कमा रहे हैं फिर भी, राइट। दूसरी तरफ से आप सोचें, अगर बाजार जोर से घटता है जैसा कि मार्च में घटा, तो पहले जो दो कंपोनेंट्स हैं, ऑप्शन प्रीमियम या फिक्स इनकम से जो रिटर्न आ रही है, वो एक महीने छोटे अंतराल में इतने इंपॉर्टेंट नहीं हो पाते हैं जितना प्राइस ले जाता है, राइट। ऑल दो प्राइस में भी आप ज़्यादा कमाते नहीं बिकॉज आपने नीचे पुट्स खरीदे हैं, बट फिर भी जैसे कि जब बाजार 11% से ज़्यादा घटा मार्च में, आप 2% घट गए। लेकिन यही चीज़ जब बड़े टाइम फ्रेम में होती है, जब बाजार घटता है बड़े टाइम फ्रेम में, तो आपका ऑप्शंस प्रीमियम और आपका फिक्स इनकम अक्रूवल इतना स्ट्रांग हो जाता है कि वो कई बार उस डिक्लाइन को पूरा ऑफसेट कर देता है। तो इसीलिए जब 2 महीने में निफ्टी 15% घटा, हम टॉप से बॉटम 2.7% घटे। लेकिन अक्टूबर से मार्च में जब निफ्टी 13.5% घटा, हम उस दौरान ब्रॉडली फ्लैट थे, बिकॉज जब वो डिक्लाइन लॉन्गर पीरियड में हुई, तो ऑप्शंस प्रीमियम और फिक्स इनकम अक्रूवल और स्पेशल सिचुएशन के थ्रू हमने वो मार्केट डिक्लाइन को ब्रॉडली कवर कर दिया। बेस्ट केस इस प्रोडक्ट, तो ये हमने खराब मार्केट की और स्टेबल मार्केट की बात की। बेस्ट केस इस प्रोडक्ट का है जब बाजार थोड़ा थोड़ा ऊपर जाए, और जब बाजार थोड़ा थोड़ा ऊपर जाएगा तो आपके पास तीनों जो आपके इंजन है वो फायर कर रहे होंगे। आप थोड़ा प्राइस रिटर्न में भी बना रहे हैं, थोड़ा आप ऑप्शंस प्रीमियम में भी बना रहे हैं, और थोड़ा बाकी जो फिक्स इनकम टाइप कंपोनेंट्स हैं वहाँ पे भी आप बना रहे हैं। और यूजली अगर आप मार्केट का कैरेक्टरिस्टिक देखें हिस्टोरिकली, देयर इज अ फेमस सेइंग दैट मार्केट्स यूजली टेक स्टेप्स ऑन द वे अप एंड दे कम डाउन वाया एलिवेटर, राइट। Elevator. तो Yeah. आते हैं जोर से नीचे, जैसा कि मार्च में आए। जब वो बाजार जोर से नीचे आ रहा है, तब आपने अगर बहुत कम पार्टिसिपेट किया उस डिक्लाइन में, और उसके बाद जब बाजार एक ग्रेजुअल रिकवरी ऊपर की दे रहा है, उस समय आपने धीरे 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 बोथ फ्रॉम ऑप्शंस कंपोनेंट एंड फ्रॉम डायरेक्शनल कंपोनेंट थोड़ा थोड़ा पार्टिसिपेट किया, देन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू विल हैव अ वेरी गुड रिस्क रिवॉर्ड आउटकम। So which is what we think that this product is well structured to capitalize on. हालांकि मैं पिछले 8 महीने की बात करूं तो ऐसा कोई पीरियड आया नहीं है अभी तक जहां पे बाजार ग्रेजुअली धीरे धीरे अप मूव देता है। बट लॉन्ग टर्म में इंडेक्स से आप 12% रिटर्न की उम्मीद करते हैं। हालांकि पिछले 8 महीने में इंडेक्स शायद 7% डाउन है, बट दिस इज नॉट द नॉर्म। ऑन द अदर साइड ऑफ द वोलेटिलिटी यू विल सी सम स्टेबिलिटी, सम रिकवरी। So I think the product is well suited to capitalize on the basic characteristic of how market behaves. So, Gaurav sir, what would be an ideal timeline for an investor to look at this product? कितना मिनिमम इन्वेस्टमेंट पीरियड होना चाहिए तब आप हम इन फंड्स को रिकमेंड कर सकते हैं फॉर दिस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी?
राइट। तो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इसका फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड डेविएशन इस प्रोडक्ट का जो अभी तक चल रहा है वो 4% से नीचे है साल का। ओके। निफ्टी का स्टैंडर्ड डेविएशन आई थिंक 16-17% होता है लॉन्ग यस। पीरियड्स में। तो कहने का मतलब है कि अगर आप लेट्स से जो भी रिटर्न नंबर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगर स्टैंडर्ड डेविएशन कम है तो उसकी वेरिएशन कम होती है, और फिर जैसे यस। जैसे आप टाइम फ्रेम बढ़ाते रहते हैं वो वेरिएशन और भी कम होती रहती है। करेक्ट। तो करेक्ट। हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई इन्वेस्टर इस प्रोडक्ट में 18 से 24 महीने का व्यू रख के आता है, तो not only are chances of losing capital very small, but getting to that 300 basis points above arbitrage, which is our internal target, that also becomes extremely more likely because उसके around variability कम होता रहेगा। तो मेरे हिसाब से 18 to 24 months is the right time frame to look at the minimum. On the higher side आप कितना भी horizon रख सकते हैं। इनफैक्ट आप 3 साल का horizon रखेंगे तो there is a good chance कि आप इवन इन द वर्स्ट ऑफ केसेस आर्बिट्राज से तो बेहतर कर रहे होंगे। एंड एज आई सेड फ्रॉम अ टारगेट पॉइंट ऑफ व्यू शायद आप 300 बेसिस पॉइंट बेहतर भी कर पा रहे हो। लेकिन जो प्रोडक्ट स्ट्रक्चर है वो ऐसा है कि अगर आप बीच में भी आपको पैसे की ज़रूरत है तो आप आराम से निकल सकते हैं, बिकॉज ए इसमें टैक्स इक्विटी है तो दैट इज नॉट अ कंस्ट्रेंट। बी ड्रॉ डाउन रिस्क बहुत ज़्यादा नहीं है। तो लोगों को कई बार ये प्रॉब्लम होती है कि जब मेरे को 100 रुपये की ज़रूरत होगी, मैं जब रिडीम करने गया तो वो 70 ना रह जाए। तो ये प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर ऐसा है, जैसा मैंने कहा, जब निफ्टी 15% घटा हम 2.7% घटे, कि ड्रॉ डाउन रिस्क काफ़ी कंटेन होने वाला है। तो वो भी एक फैक्टर नहीं है। और तीसरा, ये बहुत ही लिक्विड प्रोडक्ट है, रोज़ का नैव है। हफ्ते में 2 बार रिडेम्पशन कर सकते हैं। ये एक इंटरवल कैटेगरी फंड है जिसमें हफ्ते में 2 ही रिडेम्पशन अलाउड है, तो हर मंडे और वेनसडे आप रिडीम कर सकते हैं। और 30 डेज के बियॉन्ड देर इज नो एग्जिट लोड इन दिस प्रोडक्ट। सो सारी फ्लेक्सिबिलिटी है फॉर इन्वेस्टर्स टू गेट आउट। बट शुरुआत में आई थिंक 18 से 24 महीने का आप टाइम फ्रेम रखेंगे, एंड देर इज अ गुड चांस दैट यू विल मीट योर रिटर्न ऑब्जेक्टिव। तो गौरव सर, आपने जैसे कहा कि 18 to 24 months इज द आइडियल टाइम फ्रेम। 3 साल दो तो और बेहतर हो जाएगा, बिकॉज लॉन्गर द टाइम लोअर वुड बी द स्टैंडर्ड डिविएशन। आई अंडरस्टैंड दैट। और आपने कहा कि फॉर यू आइडियल सिनेरियो वुड बी दैट यू एंड अप गिविंग अ रिटर्न ऑफ आर्बिट्राज प्लस 2.5 to 3%, विच इज रफली लाइक 8 to 9% का रिटर्न आप एक्सपेक्ट करते हो कि ये स्ट्रेटजी को आइडियली बना के देना चाहिए। ना माई क्वेश्चन, ऑन अ पोस्ट टैक्स बेसिस, या पोस्ट टैक्स बेस दैट इज ह्यूज। मतलब जब आप इतना, आप मतलब मैं नंबर्स एग्जैक्टली तो बोल नहीं सकता, लेकिन आई अंडरस्टैंड, आई आप टोटली 15, अंडरस्टैंड। अगर आप 1 साल से ज्यादा हो तो आपको 12.5% टैक्स लगेगा। तो आर्बिट्राज का भी सेम टैक्सेशन है, तो दोनों ही राइट। सेम टैक्स प्रोडक्ट है। तो आप सोचिए जो भी आर्बिट्राज से आप एक्सपेक्ट करते हो उससे 250 से 300 ज्यादा बेसिस पॉइंट हमारा कोशिश है फेयर यहाँ। इनफ। तो देखो, आई 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 टोटली अंडरस्टैंड द फैक्ट कि रिटर्न्स किसी के हाथ में नहीं है, एंड अल्टीमेटली मार्केट्स हैव टू बिहेव द वे दे बिहेव, एंड योर रोल एज अ फंड मैनेजर इज टू अचीव, टू डू व्हाट योर मैंडेट इज, एंड देन ट्राई एंड अचीव द बेस्ट रिजल्ट्स। सो मेरा कहना ये है सर, मतलब मेरा जो सवाल था, एंड आई जस्ट वांट टू ड्रॉ सर्टेन सिनेरियोज। पहला सिनेरियो ये है कि हमने पैसे 2 साल के लिए दिए, लेट्स से, एंड हमने ये 8, 8.5, 9 वाला रिटर्न बना लिया। For that to happen, how much the index has to go up in that 2 year period? एक बॉल पार्क तो अंडरस्टैंड, बिकॉज व्हाट आई अंडरस्टैंड सर इज कि आपने कहा कि वन कंपोनेंट ऑफ योर प्रोडक्ट इज डेट एंड आर्बिट्राज, जो कि आप बहुत सेफली मेजर करो। तो आई एम अज्यूमिंग कि उसमें 5-6% का रिटर्न बैठ जाएगा, बट दैट इज जस्ट 25-30% ऑफ योर पोर्टफोलियो। कुछ पैसा आप कवर्ड कॉल के थ्रू आप कॉल बेच के थोड़ा सा बना लोगे, वो भी मैं समझ गया। बट फॉर यू टू अल्टीमेटली एंड दैट 8.5-9% काइंड ऑफ रिटर्न, आपको यू वुड वांट द मार्केट टू मूव स्लाइटली अप। सो दैट स्लाइटली अप का डेफिनेशन आपके लिए 2 साल में क्या बनता है? तो ये जो भी हम रिटर्न नंबर की बात कर रहे हैं, अगर मैं सोचूं कि 2 साल में बाजार सिर्फ फ्लैट रहे, तो भी मुझे लगता है कि उस रिटर्न नंबर में आप शायद 100-150 बेसिस पॉइंट कम कमाएंगे। उससे बहुत ज़्यादा हिट नहीं आना चाहिए। ऑलराइट। 1.5-2 साल में बाजार जोर से घटता रहे तो वो एक डिफरेंट सिनारियो है। तो उस केस में जैसा कि मैंने कहा, थोड़ा प्राइस लिंकेज है, तो उस केस में वो रिटर्न नंबर और नीचे आ सकती है। लेकिन जब तक कि आप फ्लैट रिटर्न भी देख रहे हैं बाजार का, मुझे लगता है उस रिटर्न नंबर में 100-150 पॉइंट्स नीचे आने की गुंजाइश है। उससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता होना चाहिए। अ, तो वो रिटर्न नंबर लाने के लिए आपको अगर एक माइल्डली पॉजिटिव मार्केट एनवायरनमेंट भी है, जहाँ पे बाजार, अगेन ये सब कोई फॉर्मूला नहीं है, ये मैं आप पूछ रहे हैं तो मैं कुछ रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ, अंडरस्टैंड। तो इसको आप थोड़ा ब्रॉडली ही समझें। बट मुझे लगता है अगर बाजार
फिक्स इनकम जितना भी ऊपर जा रहा है, 5-7% भी साल का ऊपर जा रहा है 2 साल में, तो भी मुझे लगता है कि वो जो रिटर्न नंबर्स हम बात कर रहे हैं वो आना काफ़ी पॉसिबल है। Fair enough. तो इसके लिए So बड़ा basic, बुल मार्केट की जरूरत नहीं है, कहने का मतलब। यस दैट इज वेयर आई वाज कमिंग टू, कि ऐसा नहीं है कि आई यस। एम एक्सपेक्टिंग कि सर मार्केट में जब 25-30% वाला रिटर्न बनेगा जिस साल में, वो साल में हमारा प्रोडक्ट वो 7.5 8 8.5 बना देगा, ऐसा नहीं है। नहीं, सो बिल्कुल ऐसा स्टडी नहीं। मार्केट, अ स्टडी यस। मार्केट which is trending upwards is what you require as a key ingredient for you to deliver your expectation, right? But एग्जैक्टली। at the same time, what I understand, Gaurav sir, is that again these are markets and nobody knows कि कब नया वॉर चालू हो जाएगा और कब क्रूड 100 150 पहुंच जाएगा. Nobody knows. There's so many variables that we live around. So there are chances that maybe after 2 years, having invested as a lump sum investment, यहाँ तो हम SIP भी नहीं कर रहे हैं, we are doing one time investments majorly. आफ्टर 2 years वी माइट एंड अप हिटिंग अ सिनेरियो जहां मार्केट आप -20% पे देख रहे हो, राइट? लेट्स से फॉर एग्जांपल किसी ने 26,000 निफ्टी पे पैसे लगाए एंड गॉड फॉरबिड 2 साल बाद उसको 21,000 निफ्टी दिख रहा है. इन दैट काइंड ऑफ अ सिनेरियो हाउ वुड यू फाइंड द प्रोडक्ट टू बिहेव? सो अगेन हितेश जी, इसमें वो पाथ बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर निफ्टी एक ही महीने में 26 से 21 हो गया, तो आप उस महीने में 2-3% ही लूज करोगे, क्योंकि आपने नीचे में ऑप्शन स्ट्रक्चर बैठा रखा है, राइट? वहीं तो आप उसके बाद उस 2-3% को तो आप बड़े इजीली रिकूप कर लोगे बचे हुए 20 महीने में, या जो भी आपका टाइम फ्रेम लेफ्ट है। तो राइट. वर्सेस विच अगर ये स्लो ब्लीड है तो थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है, बिकॉज हर महीने फिर आपके ऑप्शंस में थोड़ा 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 लॉस होगा। बट इसका एक दूसरा तरीका देखने का ये है कि हमने पिछले करीब 16 साल के मार्केट को बैक टेस्ट करके देखा था इस स्ट्रैटेजी में। एंड आई थिंक बैक टेस्ट के जो लिमिटेशंस है वो हम सबको पता है, सो विदाउट रिपीटिंग देम, जो बैक टेस्ट से आउटकम आया था वो ऐसा आया था कि ऑन अ ग्रॉस रिटर्न बेसिस कोई भी 12 महीने का पीरियड ऐसा नहीं था जहां हम नेगेटिव रिटर्न पे थे। फ्लैट दैट्स रिटर्न ग्रेट. तक हम पहुंच रहे थे ऑन अ ग्रॉस बेसिस। ऑन अ 2 ईयर बेसिस, जहां तक मेरी मेमोरी मुझे सर्व करती है, हम उन ग्रॉस रिटर्न्स पे 5% एनुअलाइज रिटर्न के नीचे नहीं आए थे, +5% एनुअलाइज रिटर्न के नीचे नहीं आए थे। एंड ओके. ऑन अ रोलिंग 3 ईयर बेसिस, इवन इन द वर्स्ट केस, हम 7% एनुअलाइज रिटर्न के नीचे नहीं आए थे। ये मैं वर्स्ट केसेस बता रहा हूँ। तो फ्लैट रिटर्न 12 महीने में, 5% कैगर 2 महीने 2 साल में, और 7% कैगर 3 साल में। ये उस बैक टेस्ट में हमारे वर्स्ट केस आउटकम्स आए थे। तो विच अगेन गोइंग बैक टू दी स्टैंडर्ड डेविएशन थिंग, राइट? जितना वॉलेटिलिटी कम है पोर्टफोलियो का, उतना जो बैंड है आपकी मीन या आपके एक्सपेक्टेड रिटर्न के अराउंड, वो बैंड कम होते रहता है। तो ये मैं एकदम एक्सट्रीम वाले केसेस बता रहा हूँ कि वर्स्ट केस में क्या हुआ था। इन मोर रियलिस्टिक सेटिंग्स शायद इससे भी बेहतर आउटकम आना चाहिए। Right. So I think, sir, our audience is matured enough to understand कि yes, back tests are back tests and there is nothing guaranteed in the market. But yes, they're a very good indicator. They're a very good indicator that what they can expect. अब सचिन बैटिंग करने आ रहा है तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि वो एक अच्छा स्कोर बना के जाएगा, लेकिन उस दिन क्या उसका एनवायरनमेंट रहा, कैसी बॉल आई, वो तो गॉड नोस फॉर दैट पर्टिकुलर डे. तो सिमिलरली द बैक टेस्ट काइंड ऑफ शोज कि भाई आपने जैसे कहा कि यार रितेश 2 साल के लिए पैसा लाओ, तो 2 साल के लिए what we saw was that a worst case scenario was कि मैं 8 नहीं बना पाया बट मैंने 5 बना के दे दिया, राइट? वर्सेस एवरेज सिनेरियो इज कि यार 8 के आसपास बना एंड मे बी अ गुड सिनेरियो वुड बी अ मच हायर नंबर देन दैट, राइट? सो एब्सोल्युटली। Gaurav sir, I think I will not be wrong in calling this product. I mean, if I were to compare this with mutual fund, then I would say that perhaps जो हमारी हाइब्रिड कंजर्वेटिव कैटेगरी होती है या इक्विटी सेविंग्स कैटेगरी जो होती है, ये प्रोडक्ट उसके बहुत सिमिलर है. व्हाट इज तो योर टेक ऑन दैट? हाँ, सो इनफैक्ट हम वो एक स्लाइड दिखाते भी हैं, शायद यहाँ कहीं होगा वो। तो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से ये इक्विटी सेविंग्स, जो कि एज यू राइटली सेड, राइट, कि जो या. म्यूचुअल फंड में जितने भी इक्विटी लिंक प्रोडक्ट्स हैं उसमें सबसे कंजर्वेटिव वो कैटेगरी है। यस. हमारा ऑब्जेक्टिव है कि फ्रॉम अ डे टू डे बेंचमार्किंग पॉइंट ऑफ व्यू ये शायद उससे भी कंजर्वेटिव हो थोड़ा। अगेन इक्विटी सेविंग्स एक बड़ी कैटेगरी है। कुछ लोग 20% इक्विटी पे चलाते हैं उसे, कुछ लोग 30-35% इक्विटी पे चलाते हैं, तो बहुत तरीके के फंड्स हैं। बट ऑन एन एवरेज अगर आप उस कैटेगरी को देखें या उसके इंडेक्स को देखें, बेंचमार्क को,
So our objective will be कि from a risk point of view, this will be slightly more conservative than that. That is the intent, our internal benchmarking, and yet try and deliver returns that we are talking about. Now, here the important caveat or the sort of important distinction is that because यहाँ पे जो options premium हम कमा रहे हैं 65-70 पोर्टफोलियो पे, वो काफ़ी साइजेबल पोर्शन है। और इसीलिए जो मैं आपको पहले बता रहा था कि आप जैसे जैसे टाइम फ्रेम बढ़ाते रहते हैं आपके इन्वेस्टमेंट का, आपका वर्स्ट केस बेहतर होता रहता है, आपकी रिस्क बेहतर होती रहती है। तो आई थिंक आप टाइम फ्रेम बढ़ाते रहेंगे तो मुझे लगता है इस प्रोडक्ट का जो रिस्क प्रोफाइल है वो इक्विटी सेविंग से भी काफ़ी इंप्रूव होते रहेगा। बट जो रोज़मर्रा का आप शॉर्ट टर्म मूवमेंट्स देखेंगे या मंथली बेसिस पे अगर आप इवैल्यूएट कर रहे हैं, तो यू आर राइट कि ये इक्विटी सेविंग से थोड़ा ही कंजर्वेटिव होगा, लेकिन जैसे जैसे आप टाइम फ्रेम बढ़ाते रहेंगे ये इक्विटी सेविंग से काफ़ी कंजर्वेटिव होते रहेगा। परफेक्ट सर, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेकर के। एंड व्हाट आई एम काइंड ऑफ डिसिफरिंग, एवरीवन विल हैव देयर ओन इंटरप्रिटेशंस, बट व्हाट आई बेसिकली अंडरस्टैंड दैट सर, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि मैं कह सकता हूँ एफडी प्लस प्लस कैटेगरी है। कि भाई एफडी का एक इन्वेस्टर जनरली कंजर्वेटिव माइंडसेट का होता है या मॉडरेटली कंजर्वेटिव होता है, तो वैसे इन्वेस्टर्स के लिए ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। इवन फॉर दी अग्रेसिव इन्वेस्टर्स आई वुड से कि अग्रेसिव इन्वेस्टर भी आज एसेट एलोकेशन करता है, और एसेट एलोकेशन के अंदर में वो जो पैसा फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट्स को दे रहा है, जहां पर वो एक पुअर आफ्टर टैक्स रिटर्न कमा रहा है, मे बी दैट पोर्शन ऑफ मनी कैन डेफिनेटली फ्लो इनटू दीज काइंड ऑफ स्ट्रेटजीज and hence can do well for even those kind of investors. So it has a space in everyone's bucket, is what I understand. Right. So, Absolutely. so one, all right. So one final question is that आई एम श्योर अभी जिस तरह से एनएफओज आ रहे हैं, एक के बाद एक हर फंड हाउस एसआईएफ लॉन्च कर रही है, एंड उसके बाद एक कैटेगरी से स्टार्ट करके फिर एक के बाद एक कैटेगरीज आते जा रही हैं। सो आपके प्रोडक्ट को आए मार्केट में काफी समय हो गया, पर यू वर वन ऑफ द वेरी फर्स्ट अर्ली एंट्रेंट्स इनटू दिस बिजनेस, एंड आई थिंक इट्स बीन नाउ 8 months that the product is live, but we have not yet seen the second offering. सो अब तो एसबीआई का आईपीओ भी सुपर हिट हो चुका है, मार्केट में आ चुका है। सो व्हाट नेक्स्ट फ्रॉम So, मैग्नम एसआईएफ? so Hitesh, I think we are speaking coincidentally at a very opportune time for me to be answering this question, which is because we had recently gotten approval for the X Top 100 long short category, which is one of the equity categories in SIO space. And if things go as planned, then within the next uh, 3 odd weeks, you should see us open that NFO. So X Top 100, when you think of it as a category, the regulator has said that at least 65% of your assets have to be outside of the top 100 companies by market capitalization. Yeah. So in a way, this is a product where the regulator is saying that invest largely in mid, small, micro kind of companies and not in large caps. So, so, so our approach there will be very different from what we just discussed. Here, risk is a very important criteria for us, and we are trying to deliver uh, an equity savings minus and arbitrage plus, somewhere in between kind of a risk reward proposition. Versus which in the X top 100 long shot, by definition, it's an aggressive category, and we'll also want to run it in a very aggressive fashion where even derivatives usage there will be to look for uncorrelated returns, not necessarily risk mitigation. And even the large cap piece that we'll use there will be very opportunistic in nature. It should be more thought of as a mid small micro kind of a portfolio. And one bucket there will obviously where you will be using the SIF edge, which is that it'll be a tactical bucket where we can go long, we can go short on an opportunistic basis. So overall, again, even in that trading bucket, the intent will be to focus on returns and not so much risk mitigation. So I think from a risk reward point of view, that portfolio will be diametrically opposite to the current one. This is very conservative. That one I think will sit somewhere here. As you can see, we had always put a placeholder for a strategy like this in this ladder. So that'll be a very aggressive product, largely investing in mid, small, and micro caps. And when you think of SBI as a fund house, historically we've been known to pick small cap companies. But because of size constraints, we have been closed on our own small cap mutual fund for the last 10 years for lump sum investments. More like 10 years. I don't remember the exact duration.
So because we think that you need a sizable. I mean, for you to manage a good small cap, micro cap strategy, you need a limited size. You can't run it on very large AUMs. So I think this, in that sense, is going to be an offering in that regards, with an added advantage of that long short piece. And the other way to think about this is that when you think of it versus other alternatives like PMSs and AIFs, this is going to be more tax efficient because it's a mutual fund structure. So That's hopefully very interesting. Yeah. you will hear from us on the X top 100 strategy. तो सर थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस दैट प्रील्यूड। अभी तो 3 वीक्स हैं, अभी तो मुझे ही नहीं पता था कि ये आने वाला है। बट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट कि अब आप लोग डायमेट्रिकली ऑपोजिट प्रोडक्ट लेके आ रहे हो, विच इज अगेन ऑन द वेरी एग्रेसिव साइड, एंड दैट टू फ्रॉम द मिड एंड स्मॉल कैप और द माइक्रो कैप कैटेगरी। एंड आई वुड ऑलवेज से दैट कि एसबीआई के अंदर में लोग श्रीनी सर को जानते हैं फॉर हिज स्मॉल कैप्स, and he being the CIO is like the founding father of all the funds. So he would have his own set of guidance to every fund manager, which would have to roll Absolutely. down. Yeah. So Hitesh, just one correction here. I've been told that this is going to be much sooner than 3 weeks. So right. Okay. Okay. Okay, sir. Fair enough. तो वो तो सर जैसी ऑफिशियल अनाउंसमेंट आएगी, विल शेयर इट विद आवर क्लाइंटेल एंड आवर पार्टनर्स, एंड दे वुड डेफिनेटली वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस प्रोडक्ट। बट एटलीस्ट आइडिया एकदम क्लियर है कि ये एक ऐसा फंड होने वाला है जहां पर आप एक अल्फा सुपीरियर रिटर्न्स एंड के लिए आप आ रहे हो, एंड यू आर understanding the risk, you have a higher risk appetite, you have a higher investment time horizon, and hence you are thinking of trying something new, which is on your X100 long short SIF. So we look forward to करेक्ट। that एंड offer. हितेश जी, यहाँ पे एक सिंपल पॉइंट मैं और बोलना चाहूंगा कि जो ये 10 लाख की लिमिट है रेगुलेटर की एसआईएफ्स में, वो 10 लाख रुपए पर एएमसी है। तो अगर हमारी एएमसी से आपको दो प्रोडक्ट दिख रहे हैं, आप उन दो प्रोडक्ट में स्प्लिट करके भी वो 10 लाख रुपए क्लाइंट के डाल सकते हैं। सो आई थिंक दैट इज ऑल्सो, इफ यू हैव मोर प्रोडक्ट्स, इट ऑल्सो अलाउज इन्वेस्टर्स टू maybe park 80% in a conservative strategy, 20% in an aggressive strategy, or some other combination depending on their risk reward profiles. Yes, yes, that's a very important update that you've given, that actually सेबी ने जो 10 लाख की लिमिट लगाई है SIF पे, वो एक फंड हाउस लेवल के पैन लेवल पे लगाई है, विच बेसिकली मीन्स कि अगर आपने मान लो स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर सिर्फ मैग्नम हाइब्रिड लॉन्ग शॉट में पैसे लगाने तो आपको मिनिमम 10 देने होंगे। बट अगर लेट से हम कहते हैं कि आपका ऑलरेडी 10 लगा हुआ है मैग्नम हाइब्रिड लॉन्ग शॉट में, और आप अभी इस इक्विटी आई मीन X100 लॉन्ग शॉट में अगर आप अभी लेट से 5 लाख रुपए लगाने की सोच रहे हो, तो आप वो कर सकते हो, बिकॉज एट अ पैन लेवल एट मैग्नम यू आर देन अ होल्डिंग ऑफ 15 lakhs। सिमिलरली मान लेते हैं कि आपने कुछ भी पैसा नहीं दिया है और आप अभी आज 10 लाख नया लगाने की सोच रहे हो, बट आप चाहते हो कि यार मैं 70-30 का पोर्टफोलियो बनाऊं, 70% मैं X100 को दूं और 30% मैं कंजर्वेटिव वाले हाइब्रिड लॉन्ग शॉट को दूं, तो वो भी आप कर सकते हो। 7 lakh plus 3 lakh put together is 10 lakh, and hence we are qualifying the SEBI norm. So yes, that's a very important clarifications that you gave, and it will be helpful for our audience. So all right, Gaurav sir, I think आपने बहुत समय दिया हमें, and I really enjoyed this conversation. समय समय मालूम ही नहीं पड़ा कि इतना लंबा समय निकल गया, but at least we were crystal clear about the ideas that we are doing. Now, मेरा मानना सर ये है कि अगर एक इन्वेस्टर समझता है कि what is he signing up for, then he will not have any problems with the outcomes till the time the fund manager is delivering what he's expected to do. Now the markets can be topsy turvy, वो एक अलग चीज है, but अगर हमें पता ही नहीं कि what are we signing up for, and then we lament the fact कि यार ऐसा क्यों हुआ वैसा क्यों नहीं हुआ, then that is a problem, and that is the reason why we have bought this series, that we talk straight to the horse's mouth, to the fund managers who are actually delivering the performance day in and day out, and try and understand from them what is the strategy that you guys are following. So thank you so much, Gaurav sir, for your time. It's been a pleasure talking to you, and we look forward to working in the upcoming X100 long short SIF with full force. And yes, once that product has some vintage, then I'll again get you back on the screen and ask you कि उसमें अब आप नया क्या कर रहे हो. Sure, my pleasure, Hitesh, and thank you so much for inviting me. I think this is a great initiative, and thanks to everyone who's been listening for the patient hearing. Thank you. Thank you so much, sir.